अब हम लोग बात करते हैं कि वाई चेंजेस आर नेसेसरी. चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस टू बी एडेप्टिव टू एनवायरमेंटल कंडीशंस. चेंजेस नेसेसरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के तहत अपने आप को एडेप्टिव बनाना चाहते हैं. द एनवायरमेंट में भी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, जो मैंने अभी ऊपर बोला है. फिर है compete in the domestic and international markets, जो मैंने competitors की बात कही. Because of this also a change is important. अगर आपको international और domestic market में compete करना है, then also you will have to undergo changes into your processes, into your products, into your technology, as well as sometimes into your people. फिर है to improve your performance. चेंज जो होता है दैट इज ऑलवेज फॉर बेटरमेंट. तो when we call it a betterment, then always there is a requirement of improvement in the performance. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए चेंजेस को इंडक्ट करते हैं. एंड द लास्ट एंड द बट नॉट द लीस्ट बट द मेजर पार्ट फॉर विच द चेंज इज नेसेसरी इज द merger and acquisition. When there is a merger or when there is an acquisition, there is a requirement of change. Now, what is a merger? Merger की बात करते हैं. Merger का मतलब होता है जब दो business entity आपस में मिल जाते हैं, then that is called a merger. ठीक है. And acquisition means when one business buys another business entity, then that is called an acquisition. So in this condition, there is a change in the management, there is change in the board, and there may be a change in the business strategy. So इस कारण से organizational change जो है एक substantive modification है. What is an organizational change? Organizational change जो है वो एक substantive modification है to some part of the organization. Change may be required for the organization as a whole or for some part of the organization, that is the workforce, the departmentations, the span of control, machinery, technology, etc. अब हम लोग जानते हैं features of organizational change. What are the features of organizational change? The first feature of organizational change is the movement from one state of balance to another. The change involves moving from existing state of balance to a new level of equilibrium. It disturbs the old equilibrium and develops a new equilibrium where new way of working become part of the system. मतलब अभी जो मैंने definition में बोला था from the existing stage to the desired state, ये बस वही है. Movement from one state of balance to the another state of balance. फिर है द सेकेंड इज इन होल और पार्ट्स. द चेंज जो होगा उसका दूसरा फीचर ये है कि वो या तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होगा या द चेंज मे बी इन पार्ट्स. लाइक इट मे इन्वॉल्व चेंज इन सम पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. Even if the change is introduced in part of organization, it affects the entire organization. The change in one part, for example, if we take a change in the technology, requires change in the learning of the people and may be structured to adopt the technology. अगर सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं, तो उसका असर पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कंप्यूटर को आपने इंट्रोड्यूस किया बैंकिंग सेक्टर में, तो उस समय क्या हुआ? नाउ द training has to be imparted, means the learning of people has to be imparted, and the entire system, entire operation has to be modified by the induction of computers into the system. ठीक है. फिर है the third feature of change is pervasive. The process of change is not restricted to one organization or one country. It is worldwide phenomenon. ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है. द होल वर्ल्ड, ऑल कंट्रीज, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट मेंबर्स, ऑल इंडिविजुअल्स चेंज देयर पैटर्न ऑफ वर्किंग. हाउएवर द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है। चेंज सिर्फ एक के लिए नहीं होता है, जब भी चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट एक वाइड एरेना पे पड़ता है और सभी लोग अपने अपने अनुसार, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एज पर द एनवायरनमेंट दे केम अप विद अ चेंज। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि फैक्टर्स ऑफ चेंज में इम्पॉर्टेंट है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के तहत आप रिस्पॉन्सिव होकर के कोई चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। वो इंटरनल हो सकता है, वो एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। फिर है कंटिन्यूस प्रोसेस। फीचर ऑफ चेंज में है चेंज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये तो खैर आप लोगों ने फिलॉसफी में भी सुना होगा, चेंज इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। Similarly, in organization also, the change is a continuous process because there is always a scope of improvement and there is always a scope of betterment. फिर है essential activity. Change is an essential activity. Change is not an optional activity. Change is an essential activity. Change is not a force that organizations may or may not respond to. Change एक ऐसा फोर्स नहीं है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को मन करेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेगा या मन नहीं करेगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। चेंज इज ऑलवेज नेसेसरी। इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सर्वाइव, चेंज हैज टू बी अडॉप्टेड बाय देम। दे कैन हाउएवर प्लान द चेंज और रिएक्ट टू द चेंज। वो दो ही काम कर सकते हैं, या तो वो चेंज को अपने से प्लान कर सकते हैं या कोई चेंज के कारण से रिएक्ट कर सकते हैं। The former approach to conduct change is conducive to organizational development and growth. They can react to a change. अगर मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तुम्हारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, नाउ दे विल हैव टू रिएक्ट टू द चेंज, मीन्स दे विल हैव टू चेंज देयर एंटायर प्रोसेस एज पर द चेंज विच इज एग्जिस्टिंग इन टू द मार्केट। या फिर उन्हें कोई अपनी नई टेक्नोलॉजी मिल गई है जिससे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बेहतर हो जाएगा, तो इन दैट केस दे विल प्लान द चेंज। ठीक है, चेंज दो तरीके से वो लोग कर सकते हैं। पहला, या तो दे कैन प्लान द चेंज और एल्स दे कैन रिएक्ट टू द चेंज। प्लानिंग द चेंज तब होता है व्हेन दे कम अप विद द चेंज एज पर देयर ओन डिजायर्स, लेकिन रिएक्टिंग टू द चेंज तब होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट के अनुसार, अपने कंपटीटर्स के अनुसार देखता है कि ऐसा कुछ मार्केट में आया है जिसके कारण से हमें अपने प्रोसेस को चेंज करना होगा, नहीं तो हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे। देन दे व्हाट दे डू, दे रिएक्ट टू द चेंज। ठीक है, फिर है चेंज एजेंट्स। चेंज जो होता है वो किसी एजेंट्स द्वारा लाया जाता है, और एजेंट्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल चेंज एजेंट्स कैन बी टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, and external change agents could be experts or advisors appointed by the executives to initiate the change process. ठीक है, चेंज के लिए चेंज एजेंट्स होते हैं, चेंज एजेंट्स हायर्ड होते हैं। दे कुड बी द इंटरनल पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ब्रिंगिंग द चेंज, और दे कुड बी द एक्सटर्नल पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर experts who are specially hired for bringing up the change.